So good afternoon, everyone. Let us begin with a problem sum based on the capital gain here. Mr. Karnik sold on 10/6/2019 his residential house in Nashe for rupees 75 lakh. So Mr. Karnik ने यहाँ पे क्या किया? He has sold his residential house property. The sale price is 75 lakh. It was purchased on 7th July 2003. So now we can identify from these two dates that this is a long-term capital gain. That means the asset was held more than 36 months. Expenses on transfer amounted to rupees 1,20,000. So here the expenses is given rupees 1,20,000. मतलब यहाँ पे जब हम लोग ने प्रॉपर्टी, जब मिस्टर कार्निक ने रेसिडेंशियल हाउस सेल किया 75 लाख में, then there was the expenses of rupees 1,20,000 of the transfer. Means I can say as agreement ट्रांसफर करने का या फिर जो भी चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो चार्जेस यहाँ पे लग गए उनको. मिस्टर कार्निक incurred expenses on improvement. So 2003 में घर लिया, उसके बाद उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया वो घर में 2005-6 में. So in the year 2005-6 means after 2 years he made an improvement of rupees 1,40,000. मतलब 1,40,000 रुपए का खर्चा किया यहाँ पे. खर्चा किया means improvement किया, कोई प्रॉपर्टी में और एडिशन किया वहां. He invested rupees 25 lakh for purchase of new residential house on 31st October 2019. So 10th June 2019 को 75 लाख में प्रॉपर्टी सेल किया एंड पैसे अभी बहुत सारे आ गए. 75 लाख रुपीस मिला है 10th June 2019 को. So वो पैसे में से 25 lakh rupees is invested into purchase of new residential house. So this 25 lakh is an expenses we can say, or some investment, new investment. So this will be claimed under section 54. 54 में ये claim होगा. You are required to compute net capital gain for the assessment year 2020-21. So assessment year is 2021, previous year is 1920. Financial year is given. CII is also given, मतलब cost inflation index. CII का full form है cost inflation index. 2003-4 109, 2005-6 117, 2019-20 289. So this will be useful to convert the cost of acquisition and cost of improvement into indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. Indexation करना पड़ेगा ना यहाँ पे. जो वैल्यू 1 लाख वी कैन से 7 लाख रुपीस का जो वैल्यू है 2003 में, तो आज उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा ना. सो हमें उसको इंडेक्सेशन करना है. सो इज इट क्लियर विद द क्वेश्चन पार्ट? क्वेश्चन आप सभी को समझा है? काइंडली रिप्लाई. Okay, that's great. Thank you for the reply. Yeah. Yes. Yes. Janvi, Kinjal, Vinayak, Maithili, Twinkle, Arshita. Okay. Apurva, Aishwarya. Great. Aditi, Achal, Jyotika. Yeah. Latika. Okay. That's great. That means you are attending the lecture. That is a great thing. Okay. Now let us come to the format here. As you can see, first of all, what we are going to write? We are going to write name of the assessee. That is Mr. Karnik. Mr. Karnik, name of the assessee, and legal status is individual. Mr. Karnik क्या है? एक individual person है. Previous year is 2019-20. Assessment year is 2020-21. Clear with this? ये समझा सभी को? Any doubt in this? Sorry, I'm not well today, but I have to take the lecture. I'll wind up. Next lecture में हमारा chapter 6 से रहेगा. We'll wind up the class. Sorry. Computation of income from capital gain. Sorry. So particulars, amount. Here you can see. First of all, what we are going to do, सर हम लोग सॉल्व ही करेंगे ना इसको अच्छे से. आप लोग को हेल्प करना है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करने में. Full value sales consideration. So full value sales consideration less index cost of acquisition. Did I explain you this sum? Did I explain you this sum in earlier class? Getting a doubt here. I have explained you. I feel so. Yes, please reply. क्या मैंने ये सम आपको सिखाया है?
मैंने मिस्टर प्रकाश शेट्टी का एक्सप्लेन किया था ना सम, और इंट्रोडक्शन टू कैपिटल गेन बताया था, तो ये मैंने सम आपको बताया है क्या स्टूडेंट्स? आई थिंक सो, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस सम, करेक्ट ना? एक्सप्लेन किया है? प्लीज रिप्लाई यस और नो, दिस टू सम्स वी हैव कवर्ड और नॉट? ओके, मिस्टर कार्निक का बताया है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? ये भी बताया मिस्टर रानाडे का? रानाडे का सम बताया है कि नहीं बताया? मिस्टर रानाडे, डिड आई एक्सप्लेन मिस्टर रानाडे? Okay, okay, okay. Sorry for this confusion here. Sorry for the confusion here. Yeah. Let us start with a new topic then. Chapter 6 से. Okay, chapter 6 से हम लोग start करेंगे. Yeah. Just a minute. तो फिर हमारा आज end up हो जाएगा students. We are going to wind up this. Now try to understand this. Deduction under chapter 6A. Now, first of all, let me explain you the important part here. Okay. How to compute the net taxable gain. How to compute the net taxable gain here. So you can see the screen here. First of all, we have understood income from salaries. हम लोग ने income from salaries पढ़ा. Then income from house property. Correct? Income from business profession. Then income from other sources. Okay, sorry. Income from capital gain. Now other source में यहाँ पे कुछ नहीं. Other source में आपको जो interest income है, dividend income है, that is being taxed. तो वो हम लोग का chapter 6 में cover हो जाएगा. Now try to understand this here. First of all, these sources we have covered. इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने पढ़ा ग्रेचुइटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है, और हमने कंपटीशन किया लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हेड्स के अंडर स्पेसिफिक डिडक्शंस मिले हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें मिला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें मिला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देन बिजनेस प्रोफेशन में हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं net profit as per profit and loss account at disallowed debit less disallowed credit. Then profession रहेगा तो allowed income minus allowed expenses. That's it. वो उतना ही कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे. Then other capital gain में हम लोग को डिडक्शन मिलता है सेक्शन 54 एंड 54 EC का. ये स्पेसिफिक डिडक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स. Then income from other source, there is no such deduction. Only few items are there. That is income from horse races or gambling, betting. Then income from interest income, dividend income. These all incomes are there. Okay. Now we have studied this. Now, for example, I'm just giving an example. One person can earn the income from various sources. ऐसा जरूरी नहीं कि एक पर्सन है वो सैलरी जॉब कर रहा है तो सिर्फ उसको सैलरी इनकम होगी. उसके अलावा भी that person can earn the other source of income. Like for example, I am doing a job in Dandekar College. I am getting the salary here, so my income will be taxable under the head salary. And also I am investing into the stock market and I am getting the dividend. So dividend मुझे मिल रहा है तो that dividend income is chargeable under the head income from other sources. Clear? Then also I have one house property here and that is given on rent. That is given on rent here. So I am getting the rent from that house property. So that income is chargeable under the head income from house property. So these are the three sources of income. Like first is income from salary, income from house property, and other one is the income from other source. So from these three sources, I am earning an income. Okay. Now try to understand. These are the three sources. And for example, my total income, matlab salary, house property, and other sources, I am earning 3 lakh rupees. How much I am earning? 3 lakh rupees. Total मिला के तीनों का मुझे 3 lakh rupees yearly income होता है. So now
this income will be added. So total income add हो जाएगा तो 3 lakh हो जाएगा. This 3 lakh will be known as a gross total income. So whatever the amount received from the various source of income from the above heads will be added, and that quantum of income is known as gross total income. So let me give you one example here. For example, I got a salary of rupees 2 lakh for the whole year, and I got a house property income as 50,000, and other sources income, that is dividend income, is 50,000. So total 2 lakh plus 50 is 3 lakh. So these 3 lakh is known as a gross total income. Is it clear with your gross total income part? Kindly reply. Kindly reply. Thank you so much. Thank you so much, students. Thank you so much for this reply. Yeah. Now, so here, income from salary, income from house property, income from business profession, income from capital gain, income from other sources. Whichever the income I have earned, I will add this income. That is, you can see here 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. That will become my gross total income. Clear? यहाँ तक clear हो गया. Now, the way before starting of this topic, I told you that every head has their specific deduction. जैसे कि salary में 16 का deduction मिलता है, house property में deduction under section 24 मिलता है, business profession में कोई भी deduction नहीं, capital gain में section 54 and 54 EC is there. So such deductions, ये deductions मतलब क्या होता है? ये हमारी income को कम करता है. जितनी income कम होगी उतना tax कम भरना है. So same way, there is a general deduction called as a chapter 6A, deduction under chapter 6A. ये क्या करता है students? This is also one of the general deduction where you can deduct, you can take the benefit of this section and you can minimize your taxable income. अपनी taxable income को आप कम कर सकते हो. ठीक है? तो taxable income को कम कैसे कर सकते हो? तो there are various sections under chapter 6A that we are going to learn today. Now that we are going to learn in this today's session. And ग्रॉस टोटल इनकम में से सपोज मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई है 3 लाख रुपीस, और मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 80C में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 लाख रुपीस माइनस हो जाएगा यहाँ पे और बचेगा 2 लाख रुपीस, एंड दैट 2 लाख रुपीस इज अ नेट टैक्सेबल इनकम. मतलब उस 2 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होने वाला है. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा सभी को? प्लीज रिप्लाई. यस, प्लीज रिप्लाई. ओके, ठीक है. Okay, now this topic becomes difficult to explain online, so I'm very much struggling to explain you because tax है, आगे जैसे जैसे पार्ट आ रहा है वैसे वैसे और difficult हो रहा है explain करने, but I'm trying my best to explain you so that you get the best knowledge of the direct tax. Now try to understand. You will get the net taxable income. So we are going to learn chapter 6 में कौन से deductions आते हैं. Is it clear? Is it clear, students? Any doubt? Shall we go ahead? हम लोग आगे बढ़े students? Shall I clear all this marks जो भी मैंने screen पे किए हैं? Yes, students, you can reply. Yeah. Today is a good count. 94 students are there. Okay, that's great. Okay. I've cleared it. Now, you can see here in chapter 6A there are total 8 deductions. You can see here deduction under section 80C. आपको याद कितना रखना है? 80C याद रखना है. 80C, it is related to savings. मतलब आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, LIC की पॉलिसी ले रहे हो,
यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, एनएससी के, एनएससी हाँ, नेशनल सर्विस, दिस एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट विल बी डिडक्टेड अंडर 80C. देन 80CCC पेंशन फंड है तो पेंशन फंड का डिडक्शन आप ले सकते हो 80CCC में. देन 80D इट इज रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप, मतलब कोई पर्सन है आपके घर में जो आपके ऊपर, जो 80C के ऊपर डिपेंडेंट है और उसका खर्चा कर रहे हो, तो आपको वहां पे भी एक बेनिफिट मिलेगा 80DD में. 80E अगर एजुकेशन लोन लिया है अपने बच्चे के लिए, तो आपको इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन जितना भी रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से. देन टीटीए में आता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट. तो सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं और उस सेविंग अकाउंट से आपको 10,000 तक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो भी आप 10,000 अर्न करोगे दैट विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, मतलब उस 10,000 पे टैक्स नहीं लगेगा. तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने 7,000 अर्न किया इंटरेस्ट, तो आपका 7,000 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. सपोज आपने 15,000 अर्न किया तो 10,000 ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ 5,000 पे टैक्स लगेगा. देन डिडक्शन अंडर सेक्शन टीटीबी. टीटीबी में कैसा रहता है, सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन है जिसमें फिक्स डिपॉजिट में क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अपने एज में आके वो लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख देते हैं. पैसा रखने के बाद उनको वहां से इंटरेस्ट आता है, तो व्हाट एवर द इंटरेस्ट इनकम इज देयर दैट इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80 टीटीबी. देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, मतलब असेसी खुद सेल्फ हैंडीकैप्ड है तो उसको वहां पे डिडक्शन मिलेगा 80U में. सो दीज ऑल आर दी सेक्शंस दैट वी आर गोइंग इन द डिटेल. हम लोग डिटेल में जाने वाले ये सेक्शंस में एक एक करके देखेंगे. तो शैल वी गो अहेड स्टूडेंट्स? यू कैन रिप्लाई नाउ. Thank you so much. If you have any doubt, you can ask me. If you have any doubt, you can ask me. Now deduction under section 80C. Now what is 80C? 80C में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 80C का नाम क्या दिया है, इन रिस्पेक्ट टू सेविंग्स, मतलब आपको अपने पैसे सेव करने हैं तो आप सेव कर सकते हो, कुछ ये जो इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं उस इन्वेस्टमेंट में जाके सेव कर सकते हो ताकि आपके पैसे बच जाएंगे यहाँ पे. अब देखो फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग एन इनकम एंड माय सैलरी इनकम, आई एम जस्ट अर्निंग ओनली फ्रॉम सैलरी, तो मुझे सैलरी मिलता है 5 लाख का, मेरा साल का सैलरी है. एंड माय ग्रॉस टैक्सेबल इनकम इज आल्सो 5 लाख बिकॉज मेरी दूसरे कोई सोर्स से इनकम नहीं है. सो 5 लाख रुपीज इज माय ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. नाउ व्हाट आई कैन डू, मुझे 5 लाख पे भी टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो मैं अपना पैसा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू कांसेप्ट्स हियर. वन इज द टैक्स इवेजन एंड द अदर वन इज द टैक्स अवॉइडेंस. Evading tax means showing your income deliberately low. जानबूझ के अपनी इनकम को कम दिखाना ताकि आपको टैक्स कम भरने में आ रहा है. दिस इज अ क्रिमिनल थिंग. यहाँ पे ये आपको गलत चीज है. अनएथिकल थिंग्स आर देयर. So here a penalty can be charged by the income tax if they identify that you are doing such type of tax evasion. Then tax avoidance will come here in the चैप्टर 6 से. आप अपने टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से. अगर आपको बचाना है तो आप क्या करोगे, यू विल गो टू सीए और आइदर यू विल गो टू द टैक्स कंसल्टेंट. सिंपली दैट टैक्स कंसल्टेंट विल सेव योर 50-60,000 सॉरी 10-15,000 का टैक्स वो सेव कर देगा आपका, और आपको उसको 1 से 2,000 रुपीज फीस देनी है. सो यहाँ पे आपका अल्टीमेटली बेनिफिट है, एक असेसी का अल्टीमेटली बेनिफिट. So he will give you here some section. He will avoid your tax. He will make sure that your tax should be avoided here and you should pay very less tax. So ये लीगल तरीका है. लीगल तरीका है मतलब यहाँ पे आपको नॉलेज रहेगा, टैक्स कंसल्टेंट को नॉलेज रहता है कि वो कहाँ से किस तरीके से सेव कर सकता है एक असेसी की इनकम. सपोज हियर फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस और एनी चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल. तो जो असेसी है उसने अपने
LIC का पॉलिसी लिया है। अब LIC का वो प्रीमियम भर रहा है 5,000 रुपए। कितना भर रहा है? 5,000 रुपए। 12 महीने का कितना भर दिया उसने? 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज ये क्या किया है? सेव कर दिया है। 60,000 रुपीज आपका इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके जेब से भी चला जाएगा प्रीमियम में, और आपका 60,000 रुपीज आपका इनकम से माइनस हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है आपका? एक तो आपने टैक्स बचा लिया, इनकम कम हो गई, टैक्स कम हो गया। द अदर थिंग इज हियर दैट you have started saving, you have got the saving habits here, you have created a saving habit here, and once the maturity comes from the LIC, you will get a bulk amount of money from the LIC. So that is the deduction under section 80C, in which various deductions are there. मैंने तो सिर्फ LIC बताया यहाँ पे. You can see the second point is any contribution made by individual to any provident fund. Provident fund में contribution किया है, NSC के सर्टिफिकेट्स बाय किए हैं, मतलब गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट ने NSC सर्टिफिकेट्स दिए, तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया. Any amount paid for himself, spouse or any child for participation in the unit linked insurance premium. तो ULIP की स्कीम में यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया. Then tuition fees. Now what is tuition fees? Tuition fees मतलब जो कोचिंग क्लासेस जाते हैं उसकी फीस नहीं. ट्यूशन फीस मींस जो आपका फीस रिसिप्ट है ना, फीस रिसिप्ट आपने अभी फीस भरा रहेगा तो आपके पास वो फीस रिसिप्ट है, तो चेक करना उसके अंदर जो आपने पे किया रहेगा, सपोज 8-10,000 रुपीज पे किया रहेगा फीस, तो वो फीस रिसिप्ट में जाके चेक करना कि ट्यूशन फीस का अमाउंट आपने कितना भरा है. तो असेसी अपने बच्चे का ट्यूशन फीस का अमाउंट यहाँ पे सेव कर सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल 8-10,000 भरा है तो 3 से 4,000 आपका ट्यूशन फीस रहेगा. So that tuition fees is exempt from the tax under section 80C. आप जाके चेक कर लेना आपको मिल जाएगा ट्यूशन फीस. ठीक है, मुझे भी बता देना कोई तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर हमारा TY BMS का या फिर TY BCom का और SY BAF का हमारा ट्यूशन फी, आपका ट्यूशन फीस कितना है वो मुझे आप बता देना एक फीस रिसिप्ट का कॉपी भेज के, तो यू विल गेट एन आइडिया. तो वो अमाउंट हम लोग क्या ले सकते हैं? एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर 80C. क्लियर? देन हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट. आपने हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट भरा. सी देयर आर टू अमाउंट्स व्हिच यू पे इन द EMI. इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आप दो अमाउंट भरते हो. द फर्स्ट अमाउंट इज यू गेट अ EMI of rupees, for example you got an EMI of 10,000 rupees. You are paying EMI to the bank, that is rupees 10,000. Out of that EMI 7,000 for example is an interest, and the 3,000 amount is your principal amount. So principal amount जो 3,000 जो भर रहे हो monthly, that is 36,000 for the year. That amount will be deducted. That amount will be deducted under section 80C. Then subscription to bonds of NABARD. So National Agriculture Bank of Rural Development के लिए यहाँ पे NABARD में आपने bonds को subscribe किया है, तो whatever amount is there that you are going to deduct. Contribution to senior citizen savings scheme. Senior citizen savings scheme में contribution किया है. Deduction is now these all are the items which are available under 80C. Many more are there. You can go through the notes here. Deduction is available to resident individual and HUF. So this deduction is available only for which person? The person who is an individual and the person who is an HUF. Now here they have given the amount. Maximum deduction can be claimed rupees 1,50,000. मतलब आप ये सारी आइटम्स में जितने भी आपको यहाँ पे दिए हैं सेविंग स्कीम्स दिए गए हैं, आप कितना भी इन्वेस्ट करो, 2 लाख करो, 4 लाख करो, 50,000 करो, 60,000 करो, सबका मिला के क्वांटम ऑफ ऑल दिस जो भी 80C, तो 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1,50,000. दैट मींस you can maximum get a deduction of rupees 1,50,000 from this 80C. अगर आपने 2 लाख का यहाँ पे सपोज आपने LIC की पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम आप साल का 2 लाख रुपए भर रहे, so that 2 lakh fully it will not be deductible, only 1,50,000 will be deductible. 50,000 को छोड़ दो, आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए जो है वो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा. सपोज आपने ट्यूशन फीस और यूलिप का मिला के हो रहा है, ट्यूशन फीस हो रहा है 50,000 एंड यूलिप का हो रहा है 1,50,000, सो टोटल 2 लाख होता है. तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना क्लेम करने वाले? यू आर गोइंग टू क्लेम 1,50,000. सो दिस इज द लिमिट अंडर 80C. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? एनी डाउट इन 80C? Okay. I asked 2 questions at a time. Is it clear? तो yes बोलेंगे कुछ बच्चे, and are you having doubt? तो बोलेंगे no sir. Okay.
Do you have any doubt? Okay. No. Very good. Very good. Now, talking about the next reduction is 80 triple C. 80 ट्रिपल सी में सिर्फ एक ही है, पेंशन फंड बोला गया है. सो डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड. सो पेंशन फंड की कोई स्कीम्स में आपने प्रीमियम भर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एवरी ईयर या एवरी मंथ कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करना है 12 मंथ से, तो ईयरली अमाउंट मिलेगा. सो दैट ऑल्सो यू हैव अ मैक्सिमम डिडक्शन इज 1,50,000. तो 80C का 1,50,000 और 80 ट्रिपल सी में भी 1,50,000. लेकिन यहाँ पे एक और नोट दिया गया है, दैट इज अंडर सेक्शन 80CCE the total deduction under section 80C plus 80 triple C cannot exceed rupees 1,50,000. तो सपोज मैंने 80C में से 1,20,000 का क्लेम किया है, 1,20,000, और यहाँ पे मैंने 40,000 रुपीज पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है. तो 1,20,000 प्लस 40 कितना होता है? 1,60,000. बट आई कैन क्लेम मैक्सिमम कितना? 1,50,000. दोनों को मिला के मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1,50,000 की है. So is it clear with 80C and 80 triple C? Kindly reply. Okay, that's great. Thank you so much. Very good. Now, try to understand the other section, that is 80D. Now, this is a separate section, 80D. 80D is related to Mediclaim insurance premium paid by the assessee out of his taxable income. उसकी जो भी income होती है उसमें से medical insurance premium का payment किया है, premium का. So this deduction is available only for whom? Resident individual and HUF. प्रीमियम मस्ट बी पेड बाय क्रॉस चेक. ये कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, दैट शुड बी पेड बाय चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी चलेगा, ऑनलाइन मोड भी चलेगा, लेकिन कैश से नहीं करना है. कैश के अलावा कुछ भी चलेगा यहाँ पे. The amount of deduction is rupees 25,000 for self, spouse, dependent children. So कितना डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम? खुद के लिए अगर प्रीमियम भर रहे हैं, या अपनी वाइफ के लिए, या वाइफ हस्बैंड के लिए भर रही है, या हस्बैंड वाइफ के लिए भर रहा है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है उनके, तो टोटल कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं? 25,000 फॉर द होल ईयर. फर्दर डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर पेरेंट्स, दैट इज additional deduction of rupees 25,000 is available, that is aged above 60 years. So यहाँ पे 60 years के above, यहाँ पे क्या किया है, अगर आपके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो उनके लिए और एक्स्ट्रा 25,000 का डिडक्शन मिलेगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो 25 अपने खुद के फैमिली के लिए और 25 अपने पेरेंट्स के लिए. तो अगर पेरेंट्स का भरा है तो 25 आप एडिशनल क्लेम ले सकते हो. मतलब टोटल 50,000 का यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D यहाँ पे क्लेम हो सकता है. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 80DD. 80DD में यहाँ पे डिडक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट. हैंडीकैप्ड डिपेंडेंस मींस मेरे घर पे कोई पर्सन है जो हैंडीकैप्ड है और उसका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, मेरे इनकम में से जा रहा है पैसा. सो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल एंड HUF. अमाउंट ऑफ डिडक्शन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप क्लेम ले सकते हो. सो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे घर पे एक पर्सन है, उसके ऊपर मैंने 25,000 का खर्चा किया साल का. कितने का खर्चा किया है? 25,000 रुपीज. तो अब यहाँ पे मैंने कितना खर्चा किया है वो डिपेंड नहीं करता है, मुझे यहाँ पे लम सम डिडक्शन मिलेगा. आई विल गेट द लम सम डिडक्शन अंडर 80DD. Now how lump sum deduction? So it depends on the disability of the handicapped person which is at my home, who is at my home. Nil in case of handicapped disabled below 40%. So suppose मैंने 25,000 का खर्चा किया है, लेकिन उसका डिसेबिलिटी 38% है. So I cannot claim the deduction under section 80DD. ठीक है? 80DD का मैं क्लेम नहीं कर सकता. सॉरी, सॉरी.
Sorry for this disturbance here. Okay. So here the disability is 40% below, and I cannot claim the amount here. Okay. Now, for example, let's take one another case. जैसे कि यहाँ पे अदिति है, अदिति के घर पे डिसेबल पर्सन है, अदिति खुद इनकम अर्न कर रही है. सॉरी, अदिति के घर पे जो पर्सन है डिपेंडेंट हैंडीकैप, उनका डिसेबिलिटी है 50%. सो 50% डिसेबिलिटी मतलब उन्होंने खर्चा किया 60,000 रुपीज. तो यहाँ पे 60,000 रुपीज उन्होंने खर्चा किया है, उनको कितना डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे? 75,000 लमसम. मतलब यहाँ पे सॉरी, डिडक्शन कितना क्लेम कर सकती है अदिति? 75,000. दो उन्होंने 60,000 का ही खर्चा किया, लेकिन उनको ज्यादा क्लेम करने मिलेगा 75,000. और अगर सपोज अदिति ने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, उनके घर पे जो डिसेबल पर्सन है वो उनका कितना है यहाँ पे? 1 लाख का खर्चा किया, लेकिन डिसेबिलिटी कितना है? 50% है. तो भी वो कितना क्लेम कर सकते हैं? 75,000 ओनली. चाहे आप ज्यादा अमाउंट स्पेंड करो या कम करो, उसके ऊपर लेना देना नहीं है इनकम टैक्स वालों का. इनकम टैक्स सेज दैट इफ अ पर्सन इज डिसेबल फॉर 50% और 40 to 80% के बीच में डिसेबिलिटी आता है, यू कैन क्लेम अ लमसम अमाउंट ऑफ रुपीज 75,000. सिंपल एज दैट. Though you pay more money than 75 or less money, we don't care. We will give you the deduction, lump sum deduction of 75,000. Is it clear? Now, rupees 1,25,000 in case of severe disability. So if a person is disabled, for more than 80%, 80% से ज्यादा disability है यहाँ पे, so a person can, SSC can claim 1,25,000 as a lump sum deduction. Is it clear? Do you have any doubt with this part? Please reply. Please reply. Please ask your doubt. Please ask it. If you have any doubt, please ask. Yes, students, kindly reply. I am waiting for your reply. Okay. Yeah. Very good. If you have any doubt, please ask. ATD very much important. ठीक है. वे कैसे क्लेम करना है, क्या है, हम लोग एक लास्ट सेशन रखेंगे. कल तो नहीं रखेंगे because tomorrow there is a Eid, so I won't be taking any lectures tomorrow. But yeah, day after tomorrow I'll keep you one lecture. मैं एक lecture रखूंगा आपका, and then we'll wind up with the session if you have any doubt related to anything. Okay, that's great. Then deduction under section 80D. अब यहाँ पे समझ लो, ये 80DD का मतलब क्या है? जो घर पे डिपेंडेंट हैंडीकैप है उनके लिए ये यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं. 80U में क्या होता है? सेल्फ हैंडीकैप होता है, जो मैं बाद में बताता हूँ, लास्ट में आएगा वो. तो वहां पे भी सब सेम ही है, सिर्फ वहां पे 80U में फर्क कितना है कि वो सेल्फ हैंडीकैप है, 80DD में उनके घर पे कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप है. रूल्स आर सेम. ओके, लेट अस गो अहेड. 80E. 80E is related to education. E for education. Deduction for interest on loan for higher education. Now try to understand this. Education में यहाँ पे suppose my child is studying in a degree college और higher education है ना. Higher education मतलब FY से start होता है, FY, SY, TY या मास्टर्स या MBA कर रहा है बच्चा. तो अगर वो, उसके लिए मैंने एजुकेशन का लोन लिया है, सो आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख. ओके, और मैं उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मेरे बच्चे का. सो दैट इंटरेस्ट अमाउंट, सो सपोज EMI आता है 9,000 रुपीज का. सो 9,000 के EMI में द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6,000 इज द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर एग्जांपल. So that 6,000 per month, 12 6 is 72,000 for the whole year can be taken as a deduction under section 80E. 80E के अंदर मैं 72,000 क्लेम कर सकता हूँ. ठीक है. और यहाँ पे
डिडक्शन अवेलेबल टू ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ के लिए नहीं होता है. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन. सो यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स. आप यहाँ पे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट भरो या 10 लाख भरो या 5,000 भरो, देयर इज नो सच लिमिट. ठीक है, अभी इसके पहले में सब लिमिट्स दिए गए थे, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. 80C में और 80CCC में 1,50,000 का लिमिट है. 80DD में 25,000 फॉर सेल्फ एंड 25,000 फॉर पेरेंट्स. 50,000 का टोटल बेनिफिट है. 80DD में डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना मिलेगा. तो 40% बिलो डिसेबिलिटी रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा. 40 to 80% 75,000 and 80% अबाउट डिसेबिलिटी इज 1,25,000. हियर इन 80E देयर इज नो लिमिट. आप जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना आप क्लेम कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 80E. देन deduction under section 80 TTA. Now TTA is related to, this one is the added section. अभी कुछ 4-5 साल पहले ऐड हुआ है ये सेक्शन. Deduction for interest on deposit in saving account. So everyone has a saving bank account. सेविंग बैंक अकाउंट में जो आप पैसा रखते हो तो आपको साल भर में या 6-6 महीने में आपको कुछ इंटरेस्ट ऐड होता है. इंटरेस्ट इनकम आती है. सो दैट इंटरेस्ट इनकम is an income for you, so that amount is exempt under section 80 TTA. वहां पे हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं? 10,000 तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं. सो सपोज हियर आई कैन से एज जैतून इज हैविंग, आई कैन से जैतून का सेविंग बैंक अकाउंट है एंड शी गॉट द इंटरेस्ट. बहुत सारा पैसा रखती है जैतून यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में, तो शी गॉट द इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपीज पूरे साल का. सो हाउ मच क्लेम शी कैन डू? ओनली 10,000. लिमिट इज 10,000. बाकी का 2,000 ऊपर टैक्स लगेगा उस पर. सो 10,000 तक तो यहाँ पे क्लेम हो जाएगा. एंड सपोज हियर हेमंती इज देयर. सो हेमंती का 8,000 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर. पूरे सेविंग बैंक अकाउंट के इसमें इंटरेस्ट 5,000 का मिला. सो हियर दिस 8,000 इज फुल्ली एग्जेम्प्ट क्योंकि लिमिट कितना है? 10,000 का है. क्लियर विद दिस? इज इट क्लियर टीटीए? Then deduction under section 80EU. U means self handicap. जैसे कि अगर असेसी खुद हैंडीकैप्ड है तो खुद हैंडीकैप है तो यहाँ पे डिसेबिलिटी 40% बिलो कुछ भी नहीं मिलेगा. 40 to 80% 75,000 and 80% above is 1,25,000. So this is what the deduction is available for 80EU. That is for self handicapped. Clear with this part? Is it clear? 80U और TTA समझा? प्लीज रिप्लाई करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके, थैंक यू. अब डिडक्शन अंडर सेक्शन टीटीबी आता है. टीटीबी में क्या होता है कि एक पर्सन है, यहाँ पे कौन से पर्सन के लिए एप्लीकेबल? सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 अबव है एज. तो 60 अबव एज के लोग क्या करते हैं? वो लोग एफडी करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं और एफडी करते हैं. तो सपोज यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन है जैसे कि श्रद्धा पाटिल है. उनके दादाजी ने यहाँ पे क्या किया है? 50 लाख रुपए का यहाँ पे क्या किया है? डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपीज का. सो 50 लाख है और बैंक अकाउंट है ना, बैंक जो है वो HDFC बैंक में उन्होंने किया है 50 लाख रुपीज का डिपॉजिट और बैंक उनको दे रही है 8% का इंटरेस्ट. कितना दे रही है? 8% का. सो 50 लाख इंटू 8% इज 4 लाख. 4 लाख रुपया उनको क्या मिल रहा है? पूरे साल का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है. तो अब 4 लाख उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इनकम हो गई. उस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए, लेकिन उस इनकम के कितने इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा? सिर्फ 3,50,000 पे होगा. 50,000 उनको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा. मतलब सिर्फ 3.5 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना है श्रद्धा के दादाजी को. सो यहाँ पे 3.5 लाख पे भरना है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 50,000. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बाय टेकिंग अ नेम. सो डू नॉट, प्लीज डू नॉट टेक योरसेल्फ, आप हर्ट नहीं होना है आपको. यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल देने के लिए नाम यूज कर रहा हूँ. So do not take it personally, students. Okay, clear? So ये हो गया TTB का सेक्शन. That's all about the chapter 6 से. आपको मैं बता रहा हूँ, प्लीज ये आप लोग अच्छे से समझ के लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ मे बी 99% चांसेस आर देयर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सो if the exam will be taken, then this MCQs में ये बहुत काम की चीज है. ठीक है, so that's all for today. We are winding up.
and we have completed our syllabus. Our theoretical part is completed. If in case you require some sums related to this topic, that is chapter 6a, then do let me know in the group. I will take one more lecture and then we will wind up with the portion. Means we are officially winding up with the portion of this direct taxes. But still, if you have any doubt and you want some extra lecture related to direct tax, then please let me know. You can message me personally if you're not able to message in the group, then, or else you can message in the group also. It is acceptable for me. I will check your message. If majority of the students are saying that to take extra lectures related to it, then definitely I'm going to take it, but not for this week. मैं इस week में अभी और एक कल नहीं, कल तो छुट्टी रहेगा, परसों में एक लेक्चर ले सकता हूँ, फिर एसवाई का एग्जामिनेशन चालू होगा. सो मे बी नवंबर मंथ में अगर आपको एक्स्ट्रा लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, प्लीज लेट मी नो. I will definitely, I will be happy to take your lecture. Okay, students? Yeah. Yeah, do not post any rule number or something like that. That will be recorded. Okay. Yeah. Yes. But yes, students, next year, definitely, next semester, you'll be having an offline examination and college is going to start. We are we are going to get the official circular, official जैसी notice आता है, that will be forwarded in the group soon. Just अभी तक कोई confirmation नहीं है, but just I'm telling you at the preliminary basis. In case if we get the official notice, then it will be forwarded in the group, and just be prepared mentally for the offline lectures for the coming semester, and also for this semester also some lectures. Okay, so maybe we can meet in the college. Okay, so even I'm happy, after a long time the college is going to start. We have waited for last 1.5 2 years, more than 2 years it is. So that's all, student, that's all. Okay, shall we wind up, students? Okay, thank you so much. Have a nice day. Bye bye, take care. You can leave. Yeah. Yeah, take care. Yeah, thank you, Mithili. I'm not well. Yeah. Yeah. Yeah, thank you, Vaishali.